students, after the judicial organization, we will study about control over company. The British government introduced the concept of the rule of law by making new laws frequently. This meant that in the eyes of law all men were equal, but the same law did not apply to Britishers and the Indians equally. The British rule was establishing deeper root in India. The 1784 Pitt's India Act brought dual rule in British India. The British Emperor and the company both governed the administrative works. In 1793, by a special charter, the tenure of company's trade affairs was extended for 20 more years. In 1813, the company lost its monopoly of trade in India, which was now open to all the British people. The British government wanted to increase its hold in India, and to achieve it, the powers of the company over India were to be curtailed. Therefore, Indian civil services system was centralized. Indians did not have a role in this new system of rule. The key and high post were not meant for the Indians. So students, जो कंपनी थी उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना बहुत सारे रूल्स ला करके लगभग उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहा, और लेकिन उन्होंने ये रूल भी लाया कि जो लॉ होगा उसके आगे सभी लोग सेम होंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स और इंडियंस जो थे वो लॉ के आगे, लॉ के सामने सेम नहीं होते थे, उनके साथ पार्शियलिटी होती थी. फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया जिसमें ड्यूल रूल सिस्टम आ गया. ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दोनों ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे. 1793 में उन्होंने एक संधि पास की और जिसमें 20 इयर्स मोर उनका जो चार्टर था कंपनी का यहाँ रहने का और व्यापार करने का, वो 20 इयर्स ज़्यादा और बढ़ा दिया गया. 1813 में कंपनी का जो एकाधिकार था अब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो गवर्नमेंट ने उससे ले लिया ब्रिटिश, और यहाँ पर अब कोई भी आ सकता था व्यापार करने के लिए. ब्रिटिश मतलब कोई भी अंग्रेज हमारे भारत में आकर के व्यापार कर सकता था. पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के उसके जो मेंबर्स होते थे, उसके जो एम्प्लॉयज होते थे वो करते थे. अब कोई भी अंग्रेज आकर के व्यापार कर सकता था. ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडिया है यहाँ की जो पावर्स हैं वो कंपनी के हाथों से चली जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी सोचती थी कि जो भारत है, इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ कर रही है वो गलत है, और उन्होंने इसलिए सिविल सर्विसेज को सेंट्रलाइज कर दिया. लेकिन वहां भी पार्शियलिटी होती थी. सिविल सर्विसेज में इंडियंस का कोई भी रोल नहीं होता था. सिर्फ अंग्रेज जो आते थे वो सिविल सर्विसेज में पास कर करके हाई पोस्ट लेते थे. Now, British economic policies. With the establishment of the company's rule in India, the English adopted new economic policies. The economic policies of the British brought about several changes in the fields of land revenue system, agriculture, trade and industry. These policies of British damaged the traditional economic infrastructure set up in India. The British economic policies dealt a great blow to Indian agriculture, trade and industry. The Indian population mostly lived in villages and the people survived on their own livelihood. The villagers largely relied on agriculture. The peasants paid a fixed part of the production to Jamidar or the ruler as revenue. The state revenue was collected through the village head or patel. The villagers enjoyed certain rights over the land and could not be evicted. When the British established their rule, they allowed the old system to be continued under the supervision of their own officials and their Indian agents. The peasants were harassed by the officials during revenue collection. जो हमारा भारत था, भारत में बहुत सारी जनता थी
वो उस वक्त कृषि पर ही डिपेंडेंट थी। विलेजेस में सारे जो लोग थे, बहुत ज्यादा लोग, बहुत बड़ा परसेंटेज जो था वो कृषि पर ही डिपेंडेंट था। इसके साथ साथ ट्रेड और इंडस्ट्री जो थी उसमें भी कुछ लोग काम करते थे। तो जो कंपनी थी उसने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि खुद तो एक बड़ी पोस्ट पर हो जाते थे और उसके अंडर में जमींदार वगैरह को बोल देते थे कि आपको लगान वसूलना है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि उनको 1%, एक फिक्स परसेंट पर उनको लगान मिल जाता था। और जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते थे, जो किसान होते थे वो जमींदार के पास या कोई एक हेड पटेल होता था उसे वो टैक्स देते थे, जो भी लगान होता था वो उसे पे करते थे। जो कंपनी थी, ये सिस्टम जो पहले से चल रहा था कंपनी ने उसे कंटिन्यू रखा, बस अपने एजेंट्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और जो पीजेंट्स थे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि बीच में जितने लोग थे तो कंपनी को जितना देना होता था उससे ज्यादा लोग कमाने लेना चाहते थे टैक्स, ताकि कुछ उनको भी बचत हो सके। तो इस तरह से जो आम जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी।